Gujarat continues to grapple with a massive flood situation amid continuous heavy rainfall. With the India Meteorological Department, the IMD issuing a red alert for several parts of the state, and you have been seeing and witnessing how rains have battered parts of Gujarat and several districts which have completely been devastated after floods have wreaked havoc. As the rescue operations continue, the schools and the colleges have also been instructed to be closed, and at the particular time, the disaster relief teams and the administration are all gearing up to rescue as many people as possible who have been stranded in the remote and the low-lying areas of Gujarat, which have been severely flooded after inundation and floods wreaked havoc. While the rescue operations and evacuations are also being done, the death toll in this rain-related accidents has increased to 28 in the past 3 days. Around 17,800 people were evacuated from the flood-affected areas as heavy rains continued to batter the state for the 4th day in a row, officials said. Viewers, now let's get to some of the images of the rescue operations where the Indian Army has conducted the rescue operations and saved lives of children and also many citizens amongst the widespread flooding that has happened across Gujarat. But this particular visual that you can see on your screen is from Vadodara, where all these homes, as you can clearly see, are severely flooded, and as the water has reached up to 7 feet also. The rescue operations continued by the disaster relief teams as the widespread flooding in Vadodara also brings the state to a halt. And we can see more visuals that are coming from the cities in Gujarat right now as people are trying to cross the roads which are severely inundated and homes are flooded. There is water in all the rooms of the people in Gujarat, as the Gujarat Chief Minister has also taken stock of the situation and issued a high alert for the rescue operations. The IMD has also issued more rainfall for Gujarat. But in the visuals, viewers, this is a situation that continues to be very grim for the people of Gujarat, particularly at this given point of time when more showers are expected, and in the coming days it remains to be highly difficult for the disaster relief teams as 28 people, remember viewers, have lost their lives as the rains and floods have wreaked havoc in the state due to severe inundation. All right, viewers, now let's also get on to my colleague Jatin Rawal, who's coming to us from Gandhinagar to share live visuals and more details on the rescue operations and in fact the kind of situation that's prevailing on the ground. Jatin, if you can hear me, very good morning to you. As we see these worrying visuals across the state of Gujarat and how in fact the central has also issued assistance and more lives are being tried to be saved, as there is water everywhere and inside the house. What remains to be the situation on the ground, especially with the fact that 28 lives have been lost? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, बहुत ही दिल दहला देने वाले दृश्य जो है वो गुजरात से सामने है। पिछले 3 दिनों से लगातार जो बारिश जो गिरनी शुरू हुई थी उसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में जो है वो अभी बाढ़ जैसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित जो विस्तार हुआ है वो बड़ौदा हुआ है। बड़ौदा के अंदर जो विश्वामित्री जो नदी थी उसने परसों रात से ही जो है अपना रौद्र स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया था। पूरे बड़ौदा को जो है विश्वामित्री नदी ने अपने बांध में ले लिया था। न सिर्फ पानी का खतरा लोगों के ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन मगरमच्छ भी उसमें से निकलकर बाहर आए थे, जिसकी वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। हालांकि पानी में तो जैसे तैसे करके निकल भी जाते, लेकिन मगरमच्छ का भी खतरा जो था उसकी वजह से लोग जो थे वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे।
विश्वामित्री नदी ने अपना रौद्र स्वरूप पूरे बड़ौदा को जो है वो एक बार फिर से दिखाया। 2017 में ऐसा माहौल जो था वो उपस्थित हुआ था। एक बार आज फिर जो है ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। पूरे गुजरात में इसी तरह का माहौल है, चाहे जामनगर हो, भावनगर हो, चाहे अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, चाहे महसाणा हो, बनासकांठा हो, सुरेंद्रनगर हो, मोरबी हो, कच्छ हो, सभी जगह पर इसी प्रकार के दृश्य जो है वो सामने आए। लोगों के घरों में पानी जो था वो घुस गया डीप डिप्रेशन की वजह से, और साथ ही साथ मानसून ट्रफ 3 सिस्टम जो थे वो एक साथ सक्रिय होने की वजह से ये खतरा जो था वो गुजरात के ऊपर मंडरा रहा था। हालांकि आज आईएमडी की तरफ से एक सूचना जारी की गई थी कि डीप डिप्रेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट होता दिखाई दे रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ अगर डीप डिप्रेशन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है तो गुजरात को अगले 24 घंटों के बाद जो है वो इस परिस्थिति से जो है वो बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन अभी भी अगर गुजरात की बात करें, गुजरात में 636 जितने जो मार्ग है वो अभी भी प्रभावित है, जिसमें अहमदाबाद के 2 मार्ग है, बड़ौदा के 3 मार्ग है, कच्छ के 3 मार्ग है, सुरेंद्रनगर का 1 है, महसाणा का 1 है, बनासकांठा का 1 है, अरवली के 2 रास्ते हैं। साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों के तकरीबन 537 से भी ज्यादा रास्ते जो है वो बंद है। बहुत सारे रास्ते ऐसे भी हो गए गांव के छोटे मोटे जो काफी समय से जो है वो बारिश की वजह से बंद है। 28 लोगों ने इस बार जो है वो पिछले 3 दिन की जो बारिश गिरी इसमें 28 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई। ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो कल ये जो है वो एससीओसी से दिया गया था। अभी भी हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो बारिश जो है वो लगातार गिर रही है। अभी भी बहुत तकरीबन 21 जितनी नदियां हैं उन्होंने अपना रौद्र स्वरूप जो है वो धारण किया है। साथ ही Kindly साथ stay on with us while you continue to bring us a ground situation. But at this given point of time, my other colleague Pratik Limbine also joins me from Rajkot in Gujarat. And Pratik, as we come to you and we can see that you are near the area which is in fact severely affected and near the area where the rescue operations also are likely to be undertaken. What remains to be the situation as far as the low-lying areas are concerned? Also, kindly go to other people who are surrounded by you and massively impacted as the victims of such flash floods that the state has seen in a long time. Pratik. राजकोट की बात की जाए तो राजकोट में जो दृश्य है वो दिखाना चाहता हूँ कि राजकोट का जो ये रामनाथ आची नदी है वो यहाँ से गुजरती है, और राजकोट का जो आस्था का प्रतीक है रामनाथ महादेव, उसको अभी जो है वो शराबी कर रही है, और जिसकी वजह से ऊपर के इलाकों में जो पानी या बारिश हुई उसकी पानी की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके चलते राजकोट की आजी नदी है वो 2 बार ओवरफ्लो हुई थी, और उसके चलते राजकोट के काफी सारे जो निचले हिस्से के जो इलाके हैं उसको वो प्रभावित हुए थे, जैसे कि जंगलेश्वर है, कोराला विस्तार है, रामनाथपुरा है, भगवतीपुरा है, जिससे काफी सारे विस्तार है, खोड़ियारपरा जैसे विस्तार प्रभावित हुए थे। और इन सब विस्तार प्रभावित होने के कारण सरकार तंत्र ने त्वरित उसको वहां से निकाला था, और काफी सारे लोग उसमें फंसे भी हुए थे, जैसे कि खोड़ियारपरा में कल माता जी का जो मंदिर है उसमें 4 लोग फंसे हुए थे, तो जो एनडीआरएफ की टीम थी उसने वहां से उसको निकाला था, रेस्क्यू किया था। साथ ही साथ गुजरात सरकार ने आदेश भी दिया था कि तेरा जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी जो टास्क पैरामिलिट्री मेडिकल टास्क है वो भी यहाँ पर राजकोट में आ चुकी थी, और उन्होंने भी उसकी जो है वो तैयारी दिखाई थी कि कुछ जैसी भी सिचुएशन हो जाए तो जो तंत्र है वो अलर्ट मोड पर है, और किसी भी तरह से यहाँ का जो खतरा है वो खतरे से लोगों को बचाया जाए। इस वजह से काफी सारे जो प्रभावित एरिया थे जैसे कि थोराड़ा है, रामनाथपुरा है, उसके सारे जो निचले हिस्से के जो रहने वाले थे उन सबको बाहर सही सलामत से निकाला था। काफी सारे All right, Pratik, as you also show us the live visuals, in fact, of how worrying and scary it is getting for the people in Gujarat, I'll request my other colleague Jatin to kindly also go to the victims of these places, which have been severely inundated at this point of time, and the rescue operations are continuing, but at the same time they are finding it very hard to gather the courage to cross these areas which are severely flooded. Jatin. जी देखिए, बिल्कुल जो ये तकरीबन अब तक जो है वो
गुजरात के अलग अलग जिलों में, जैसे कि आज अभी नडियाद में सुबह में 6:45 बजे मिलिट्री की तरफ से जो है वो 2 लोगों को जो 4 लोगों को नडियाद में एक मोहम्मदपुरा करके एक गांव है, वहां से 4 लोगों का आज सुबह में ही अर्ली मॉर्निंग में ही जो है 6:45 बजे वहां से रेस्क्यू करके उनको सलामत जगह पे जो है वो ले जाया गया है। ऐसे ही अभी कल जामनगर के अंदर एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो किया गया था। साथ ही साथ पूरे गुजरात में इसी तरह के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मिलिट्री की तरफ से जो है वो लगातार जो है किए जा रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर लगभग 135 जितने लोगों का जो है अब तक रेस्क्यू जो है वो किया गया है, उनको सलामत जगह पर जो है वो निकाला गया है। लगातार आईएमडी की तरफ से और जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, जो एनडीआरएफ की टीम जो तैनात की गई है, एसटीएफ की टीमें जो है वो तैनात की गई है, उन सभी लोगों से जो है बार बार सभी इलाकों में अंदर जाकर जो है उनको सभी लोगों को जो भी अंदर फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। सभी लोगों को जो भी प्रभावित जो विस्तार है, चाहे बड़ौदा हो, सबसे ज्यादा अभी जो विस्तार है वो प्रभावित है जो बड़ौदा है। बड़ौदा में जो विश्वामित्री नदी ने अपना रौद्र स्वरूप धारण किया है, जिसकी वजह से लोगों के पूरे घर जो है वो, जैसे निचला अगर मकान है तो पूरा मकान जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। ऐसे में लोग जो है ऊपरी मंजिल पर जो है जाकर या तो कुछ लोगों के अगर मकान ऊपर नहीं है तो टेरेस के ऊपर कुछ लोग रह रहे हैं, उनको फूड पैकेट जो है वो मिलकर जो है वो अपना गुजारा जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ वो जा नहीं सकते। पानी का खतरा है, लेकिन पानी के साथ साथ मगरमच्छ का भी उतना ही खतरा जो विश्वामित्री नदी है उसके अंदर रहता है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर जो ये टीमें जो है वो मगरमच्छ को पकड़ने के लिए तैनात की गई, लेकिन कभी भी मगरमच्छ कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि नदी है, कहां से मगरमच्छ आएगा कोई जो है उसका ठिकाना नहीं है। इसी की वजह से लोग जो है नदी में उतरने से जो है वो बच रहे हैं। अगर कुछ जरूरी काम हो तभी लोग नीचे उतरे, क्योंकि लगातार हालांकि एनडीआरएफ, एसटीएफ की टीमें, फॉरेस्ट विभाग की भी टीमें जो है इसके पीछे लगी हुई है। अभी भी अगले 24 घंटे जो है वो बड़ौदा के लिए नहीं लेकिन पूरे गुजरात के लिए भारी होने वाले, क्योंकि सिर्फ अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा जितने जो कुछ इलाके हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। साथ ही साथ जो साबरकांठा, अरवली, पाटन, दाहोद जैसे इलाके वहां पर येलो अलर्ट दिया गया है। उसके अलावा कि बाकी जितने भी इलाके हैं सभी इलाकों में जो है अभी भी रेड अलर्ट दिया गया है। जैसे मैंने बताया था, अगर डीप डिप्रेशन जो है, जिस तरह आईएमडी ने बताया था कि अगर डीप डिप्रेशन ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, अगर पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो गया तो 24 घंटों के बाद गुजरात को इस जो ये विकट परिस्थिति है उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है, वरना अभी भी अगले 48 घंटे जो है वो गुजरात के लिए काफी भारी हो सकते हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.